see all of you listen here. In last lecture, we have started with the second chapter, that is mode of reproduction. In last lecture, we have completed the one, sexual reproduction in plant. In today's lecture, we are starting with a new topic in the same topic, in the same chapter, that is 3.2, asexual reproduction in a plant. So, starting with the topic, that is asexual reproduction. So, now what's the meaning of asexual reproduction in plant? Asexual reproduction does not involve a fusion of male and female. So, in last lecture, we have seen that sexual reproduction consists of pollen grain, that is male reproductive part, which will consist of a male gamete, and the ovule, which will consist of female gamete. And both of them, there is a union is take place, and there is a formation of zygote after a fertilization. But in asexual reproduction, we do not require any type of fertilization, that is a fusion of male and female gamete, and a new offspring is formed. Okay, so this is called as a asexual reproduction in plant. So the next point, new plant may develop from vegetative part of the plant, and this type of reproduction is called as a vegetative reproduction. Or seed may arise, but embryo that develop without a fertilization, and the process is called as a apomix. Now, what's the meaning of vegetative reproduction? So, in term of asexual reproduction in human, we are calling it as a asexual reproduction. If a same word, if we are using for a plant, so in a plant we are calling it as a vegetative reproduction. Now, what's the meaning of vegetative reproduction and a vegetative organs in a plant? So, other than a flower, okay, a flower, it is a sexually reproducing organ. It is a sexual organ in a plant. So, other than the flower, all the parts, that is a root, then stem, then leaf. Okay, so all these parts other than a flower is called as a vegetative part of a plant. And if it is a plant is formed by vegetative part, that is without the fusion of male and female gamete, so this type of reproduction is called as a vegetative reproduction. Or in some of the plant, seed may form. Okay, seed may form, but that seed will not form. Okay, so that seed is formed by विदाउट अ फर्टिलाइजेशन, मतलब वहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, लेकिन सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस, एंड दिस इज आल्सो अ वन टाइप ऑफ asexual reproduction in plant. So in that we will starting with 3.2.2, that is vegetative reproduction. Now what's the meaning of vegetative reproduction? So reproduction by vegetative parts of the plant is called as a vegetative reproduction. Okay, so which are the vegetative parts? As I already said, that is root, stem, leaves. These are the vegetative part of a plant. And if a plant is formed by this vegetative part, so this type of reproduction is called as this type of reproduction is called as a vegetative reproduction. Now we will see that vegetative reproduction in plant in a detail. Now you can see that the first one type of vegetative reproduction, it is a natural vegetative reproduction. There are two types of vegetative reproduction, that is a natural vegetative reproduction, and the second one is the artificial, means it is the man. Okay, so we will starting with the first one, that is in natural vegetative reproduction. In nature, a new plant develop from a portion of a plant body, that this may occurs through a modified underground and subaerial stem through on a bulbous. So this is called as a vegetative reproduction. You can see that. Okay, you can see that this is a onion अगर हम लोग हमारे घर पे रखते हैं, तो उसके बल्ब में से क्या होता है, फिर से प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा if they get a required temperature and humidity in our home. देन आपने देखा होगा कि हम लोग अगर घर के अंदर अगर ज्यादा दिन का पोटैटो रखेंगे, तो पोटैटो के ऊपर बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है और उससे भी नए प्लांट के फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज वन टाइप ऑफ स्टेम से हो रहा है. देन यहाँ पर कॉम का एग्जांपल दिया है,
then rhizome का example दिया है. Okay, so these we have already seen in 11. Okay, 11 में हमने ये सब parts देखे. Now the first one type of okay, now that vegetative reproduction natural, this may occurs through a modified underground subaerial stem and through a bulb. In that we will starting with the first one type, that is underground stem. Okay, normally whatever plant we are seeing, the stem is present in a aerial position, but in some of the plant the stem is present on a underground, मतलब ये soil के नीचे भी रहे. Like an example अगर मैंने potato का ले लिया, so potato is nothing but a one type of a stem जो कि underground form. Now the underground modification of stem generally serve as a storage of organs and contain many birds. Normally जितने भी stem underground होते हैं, so underground stem के अंदर क्यों होता है, so what is the function of that underground store or stem, so they can store the food. उनके body में जो extra food होता है, that will be stored inside that stem. Like example, if I'm taking a potato, तो potato के अंदर starch का storage होता है, जो कि plant के अंदर extra जो भी food है वो है, and whatever underground stem, these have forming a birds. Okay, so these birds develop into a shoot and produces the plant after a root. You can see this picture also. ये जो भी potato है, तो इसके अंदर पहले birds का formation होते हैं छोटे छोटे white color के, और फिर उसका germination होने के बाद वो root वगैरह का करेगा और फिर उससे new plant का formation start. Example of such a modification are given in a figure. You can see that figure, all that. This is a tuber, this is a potato, bulb, that is onion and garlic. यहाँ पर onion दिया है, garlic वगैरह जो हम लोग खाते हैं, तो उसके अंदर जो garlic के जो part होते हैं, that is nothing but a one type of a bulb, और उससे भी new plant का formation हो जाता है. Then rhizome, that is ginger and turmeric. हमारे घर में हम लोग जो टर्मरिक वगैरह पाउडर लाते हैं, तो वो कैसे फॉर्म होता है, तो उसका जो भी पार्ट होता है दैट इज स्टेम का पार्ट है. और जिंजर, व्हाटएवर जिंजर वी आर यूजिंग फॉर अ टी, ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि फूड को स्टोर करता है. तो इसको भी अगर हम लोग कट करके सॉइल में लगाएंगे तो उससे नए प्लांट हो. देन आफ्टर दैट द सेकंड टाइप ऑफ natural reproduction, vegetative reproduction, it is a subaerial stem. पहले वाले में हमने क्या देखा, that is underground stem. Now we can see that a subaerial. Now what's the meaning of subaerial? एरियल यानी नॉर्मली जो हम लोग प्लांट हमारे आजू बाजू में देखते हैं वहां पर स्टेम अपर साइड में जाता है, दैट इज एरियल. सब एरियल यानी कि वो सॉइल में भी जाएगा और फिर से एयर के या तो फिर वो सॉइल को टच करते हुए ग्रो हो. यू कैन सी दैट दिस इज अ रन. 11th में आपने देखा जो ग्रास ग्रो होता, सो ग्रास को हमको सब जगह लगाने की जरूरत नहीं है, अगर एक जगह भी लगा दिया तो वो रनर्स के टाइप में रन होता है. हमने ये 11th में ये ऑफसेट वाला जो भी है वाटर के ऊपर ग्रो होने वाला है, सो ऐसे प्लांट जो भी है ये सब. नो सब एरियल स्टेम, दिस मॉडिफिकेशन इंक्लूड्स अ रनर. ओके, यू कैन सी दैट हमने एक जगह लगा दिया और ये पूरा ग्रास सब जगह राउंड के ऊपर आपको मिल जाएगा. देन देयर इज अ स्टोलन, यू कैन सी दैट स्टेम पहले ऊपर जाता है और फिर नीचे की तरफ आएगा और फिर उसमें रूट का फॉर्मेशन होगा और फिर वहां से स्टेम वगैरह लीफ का फॉर्मेशन होगा. सो दिस पार्ट इज नथिंग बट अ स्टोलन and a sucker type of rooters. Okay, those कुछ stem ऐसे हैं जो suckers type. Subaerial stem are used for propagation of a main and date plant etc. Propagation means अगर हमने एक जगह पे लगा दिया है तो उससे नए नए प्लांट फिर उसके आजू बाजू में फॉर्म हो. और अगर हमने इसको कट कर दिया, अगर मैंने यहाँ से कट किया, सो न्यू प्लांट का मीन्स यहाँ प्रोपैगेशन जो भी नंबर्स है वो बढ़ने के चांसेस यहाँ पर सब एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन. Now the third type is bulbil. Now what's the meaning of a bulbil? These are the modified flower. Okay, it is a part of a flower. So these are the modified flower that develop into a plant directly without a formation of a seed. यानी कि ये सीड का फॉर्मेशन नहीं करेगा और डायरेक्टली फिर से नए प्लांट का फॉर्मेशन. And these are vegetative body. और ये जो पार्ट है, this is a vegetative body. Their development does not involve a fertilization of a seed. नॉर्मली हम लोग जो फ्लावर देखते हैं वहां पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर्स होते हैं, वहां एंथसिस होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है. देन वो जो गाइनोशियम होता है स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन गिरेगा और फिर वो उसको जर्मिनेट होने के बाद पॉलन ट्यूब से फर्टिलाइजेशन.
बट ये जो भी पार्ट है यहाँ पर फ्लावर से भी अगर फॉर्म हुआ, बट उस फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। ओके, देयर इज अ नो रिप्रोडक्टिव पार्ट फॉर्मेशन इज टेक प्लेस, ये पार्ट का फॉर्मेशन वहां नहीं होगा और डायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो वो पार्ट है। सो दीज आर vegetative bodies and their development does not involve fertilization and a seed formation, fertilization नहीं होगा प्लस सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा और डायरेक्टली ये न्यू प्लांट। now the lower flower in an inflorescence of a garlic naturally develops into a bulbil. Scientists are trying to induce a bulbil development in a plantation of a crop by culturing young inflorescence on a tissue culture method. It has been successfully done in a cardamom. ओके, ये सब आपने जो भी कार्डमम वगैरह इलायची वगैरह खाए हैं, तो ये जो भी है ये बल्बिल से ही फॉर्म होने का यूज होता है। और ऐसे ही साइंटिस्ट फिर इसका भी यूज करें ना, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ, यहाँ पे क्या दिया है देखो, बल्बिल्स का फॉर्मेशन कौन से फ्लावर से होता है, नॉट ऑल फ्लावर। सो द लोअर फ्लावर इन इन्फ्लोरेंस, जो ग्रुप ऑफ फ्लावर होता है उसके अंदर से जो लोअर फ्लावर होता है नॉर्मली गार्लिक के अंदर, ये नेचुरली बल्बिल्स में डेवलप होता है और उससे नए प्लांट का फॉर्मेशन। तो साइंटिस्ट ने ऐसे जो यंगर फ्लावर होते हैं इनको कल्चर करके, ओके, मीडिया के अंदर कल्चर करके उससे भी प्लांट फॉर्मेशन करने का ट्राई किया है और ये सक्सेसफुल हो गया है, दैट इज कार्डेमम में। सो अल्टीमेटली दैट इलायची वगैरह सभी ने खाया होगा, तो इसके अंदर ये सक्सेसफुल हो गए। यू कैन सी दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ बल्ब। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, a second type of vegetative reproduction, that is artificial vegetative reproduction, and it is also called it as a commercial reproduction. मीन्स हमने फर्स्ट वाले पार्ट में देखा कि प्लांट के अंदर क्या होता है, तो प्लांट के अंदर नेचुरली ही जैसे पोटैटो वगैरह हमने घर में रखा है, उसको अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन ह्यूमिडिटी वगैरह प्रोवाइड हो गया तो वो अपने आप ही ग्रो होना स्टार्ट, तो वो नेचुरली हुआ। आर्टिफिशियल में दिस इज अ मैन मेड, यानी कि हमने कट करके लगाया। लाइक वाइज इफ आई एम टेकिंग अ कॉमन एग्जांपल, तो आपने देखा होगा कि हमारे आजू बाजू में जो चाइना रोज होता है, हिबिस्कस का, जासवंदी का प्लांट जो होता है, तो इसको हम लोग कैसे ये करते हैं, तो नॉर्मली उस प्लांट को हम लोग रूट से आके नहीं लगते, वो प्लांट को हम लोग क्या करते हैं, रेनी सीजन आने के बाद उसके स्टेम को कट करते और दूसरे जगह प्लांट करते। तो ये क्या होगा, स्टेम यानी वेजिटेटिव पार्ट, और उस पार्ट को आपने दूसरे जगह लगाया और उससे नया प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। तो दिस इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बट ये आर्टिफिशियली हुआ, उसका स्टेम खुद से कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कमर्शियल रिप्रोडक्शन, बिकॉज इसको हम लोग अलग अलग टाइप कमर्शियली फॉर मनी मेकिंग या तो ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए यूज करते हैं, लाइक मनी प्लांट है, देन रोज का प्लांट है। तो ये सब कैसे फॉर्म होता है, सो दीज आर फॉर्म बाय दिस artificial vegetative reproduction. So now we will start with the topic. Artificial vegetative reproduction, it is commonly used for propagation of many crop species, although it may not occur naturally in those posts. So अगर मैंने रोज लिया, रोज का प्लांट अगर हमारे घर पे लगा, उसका स्टेम क्या खुद से कट होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा, नहीं करेगा। बट उसी प्लांट को अगर हमने कट किया और फिर उसको कहीं प्लांटेशन किया और फिर उससे नया प्लांट फॉर्म होने के चांसेस होते हैं। ओके, सो दिस इज अ वन टाइप, दैट इज artificial vegetative reproduction. So yeah, now in that stem cutting, now stem cutting is a commercially used for propagation of sugar cane. शुगर कैन का जो भी वैरायटी, ओके, सभी ने शुगर कैन खाया होगा और उसका जूस वगैरह पिया है, तो अल्टीमेटली शुगर कैन है, देन ग्रेप्स का वैरायटी है, रोज का वैरायटी है, सो एक्सेट्रा। ये सब हम लोग कैसे लगाते हैं, तो ये सब हम लोग उसके स्टेम को कट करके लगाते हैं। लेयरिंग, बडिंग, grafting and booting are common for use of propagation of a fruit trees and ornamentals. So ये जो स्टेम कटिंग है इसके भी अलग अलग टाइप है, जैसे कि यहाँ पे एक लेयरिंग दिया है, बडिंग दिया है, ग्राफ्टिंग दिया है। ओके, सो व्हाट इज ऑल दिस, सो लेटर ऑन वी विल सी दैट, अभी आगे वाले लेक्चर में लोग यहाँ पे वही देखने वाले हैं ये सब क्या। नाउ टेक्निक आर अवेलेबल फॉर वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन, though the tissue culture in a case of many plant species, an attempt are being made to develop a technique for many plants. तो यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर मैंने एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट, जैसे कि अगर अगर हमने रोज का ही प्लांट लिया, इफ आई एम टेकिंग अ रोज प्लांट,
सो रोज के प्लांट होने के बाद उसका जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगा तो वो फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा, फिर उससे फ्लावर आएंगे, फिर उससे सीड का प्रोडक्शन होगा, फिर वो सीड कहीं लगाओ, फिर उससे नया प्लांट आएगा। सो इतने टाइम रुकने से अच्छा है हमको एक प्लांट मिल गया है उसका स्टेम कट करो और फिर उससे नया प्लांट का फॉर्मेशन फटाफट हो। सो ये थोड़ा सा इजी मेथड है, और सो वी कैन यूज दिस मेथड फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट जो कि गार्डन वगैरह लोग रखते हैं, ऐसे प्लांट के लिए नॉर्मली यही सब यूज होता है। लाइक जैसे मैंने बोला आपको रोज का वैरायटी है, देन इसके अंदर मैंने ब्रायोफाइलम जो भी पत्ते से होता है, स्टेम कटिंग से होता है, तो ये सब वैरायटी जो भी है। कॉमन एग्जांपल अगर मैंने आपको दे दिया, सो दैट इज आपने देखा होगा कि मनी प्लांट, ओके, तो उसका हम लोग स्टेम कट करके लाते हैं और फिर कहीं पे भी लगा देते हैं, तो वो प्लांट फिर क्या हो जाता है, फॉर्म। In many of these species, sexual reproduction occur naturally, but for certain reasons, vegetative reproduction is more desired. Flower are some important artificial reproduction factors. मीन्स ये जो प्लांट है इसमें से कुछ प्लांट्स के अंदर नेचुरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर का फॉर्मेशन होने के बाद होता है, बट वो जो भी टेक्निक है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और उसके लिए हम लोग उतना टाइम नहीं रुक सकते, बिकॉज ये ऑर्नामेंटल प्लांट का अगर यूज करें तो हमको फटाफट प्लांट फॉर्म करना है, उसका सेलिंग करना है, सो वी गेट अ मनी। सो इतना टाइम हम लोग नहीं रुक सकते हैं कि सीड लगाओ और फिर सीड से नया प्लांट फॉर्म होगा। सो अल्टीमेटली फिर हम लोग ये मेथड थोड़ा सा और इजी हो जाएगा और हमको मनी प्रोवाइड। So now we will starting with that a type of artificial and commercial reproduction. So stem cutting में ही देखो फर्स्ट वाला टाइप ये है, that is cutting. Okay, the cut. Many plant like rose, bougainvillea, then croton, collis, money plant and sugar cane, etc. are grown through a stem cut. So normally ये सब जो plant है इसको हम लोग stem को cut करके ही लगा. Now cutting of this plant can be grow even in water where they strike root and develop into adventitious bud. You can see that in the picture. यहाँ पर सिर्फ हमको क्या करना है कि अगर यहाँ पर एक कुछ बर्ड्स वगैरह फॉर्म हो गया तो ऐसे स्टेम को हमको सिर्फ ये वाला जो प्लांट है, जो बिगर प्लांट है, उसमें से कट करना और कट करके उसको या तो वाटर में रखो या तो डायरेक्टली सॉइल में लगा दो, और फिर उससे क्या होगा, उसमें रूट का फॉर्मेशन होगा और बर्ड के फॉर्मेशन से फिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन। और ये नॉर्मली जो भी है और रोज का वैरायटी है, मनी प्लांट का वैरायटी है, शुगर कैन का वैरायटी है, इसके लिए यूज होता है। मीन्स नॉर्मली जो शुगर कैन कल्टीवेशन करते हैं वो लोग करते क्या है, तो वो लोग जब शुगर कैन का प्रोडक्शन हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट सेल कर दिया, तो उसमें से कुछ स्टेम के पार्ट रखे रहते हैं और फिर उसको वो लोग कट कट करके क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं शुगर कैन के बाद। Now the second type of artificial and commercial reproduction is simple tongue layer. Okay, simple tongue layer. What's the meaning of that? You can see in this. Okay, यहाँ पे देखो. Okay, you can see. What's the meaning of simple tongue layering? In this method, a lower branch of a plant is bent down and covered with a moist soil, leaving the ground deep above the soil. You can see in this picture, हम लोग जो ये नॉर्मल प्लांट है उसका जो लोअर वाला, जो नीचे वाला जो इसका ब्रांच होता है उसको हमको थोड़ा सा बेंड करना है और बेंड करके एक फिर हमको एक पॉट वगैरह लेना है, कुछ लेना है और उसके अंदर वाटर सॉरी उसके अंदर हमको सॉइल जो भी है ऐड करके और थोड़ा सा वेट करके सॉइल को टच कर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, a slanting vertical cut is given on a selected pencil size stem in the soil before bend down, यानी कि जहां पर हमने किया है यहाँ पे हम लोग छोटा सा एक कट कर दें, ओके, और फिर उसको सॉइल के अंदर हमको डाल बिफोर। Now, it bends down in a few weeks time when ino roots are developed on underground portion above the cut part. It will cut off the parent plant and grow separately as an independent plant. The example is a guava. Okay, so you can see that हमको क्या करना है, जो ब्रांच है उसको लोअर वाला जो ब्रांच होता है उसको बेंड डाउन करना। बेंड डाउन करने के बाद हमको जो पार्ट सॉइल को टच करना, सॉइल के अंदर डालना है, वहां पे एक छोटा सा कट मारा और फिर उसके अंदर सॉइल वगैरह ये करके वेट रखते हैं। फिर अब क्या होगा, इसमें 10 to 15 डेज के बाद वहां पर थोड़े थोड़े रूट के फॉर्मेशन होते हैं। वंस द रूट इज फॉर्म, फिर हमको क्या करना है, ये इतना जो पार्ट है इसको यहाँ से कट करना है और फिर ये जो प्लांट है
ये इस प्लांट से डिटैच हो जाएगा और फिर ये न्यू प्लांट को हम लोग न्यू प्लेस में क्या कर देंगे, लगा। तो द कॉमन एग्जाम्पल इज गवा के प्लांट के लिए ये यूज होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्निक। ये देखो ये टेक्निक नॉर्मली किसके लिए यूज हुआ है, इसका अगर हम लोग डायरेक्ट अगर स्टेम कट कर दिए और कहीं पर लगा दिए तो ये डायरेक्ट फॉर्म नहीं करे, तो इसीलिए हमको स्टेम को बेंड करना है, सॉइल के टच में लाना है, फिर उसमें रूट का फॉर्मेशन होगा और फिर उसको कट करके फिर कहीं और लगा दो। तो दैट वाज द सेकंड टाइप ऑफ कमर्शियल रिप्रोडक्शन, दैट इज अ simple tongue layering which is used for guava. Now the third type of commercial reproduction and artificial vegetative reproduction is air layering or fruit. ओके, एयर लेयरिंग मींस एयर के अंदर ही हमको लेयरिंग करना है। ओके, और यहाँ पर हमको बेंड वगैरह नहीं करना। सो एयर लेयरिंग एंड अनदर नेम ऑफ दिस टेक्निक इज कॉल्ड इट एज अ गुड। नाउ व्हाट्स हैपन इन दिस टेक्निक, it is a similar practice where a bending of branches not possible because of a height of the plant or due to woody nature of stem, यानी कि कुछ प्लांट या कुछ ट्री उनके स्टेम या तो एकदम इरेक्ट होते हैं या तो उसको हम लोग बेंड नहीं कर सकते। सो ऐसे टाइम में क्या होगा, अगर हम लोग उसको बेंड नहीं कर सकते तो उसमें रूट का फॉर्मेशन कैसे करें। सो फॉर दिस वी आर यूजिंग अ सेकंड टाइप ऑफ मेथड दैट इज एयर लेयरिंग एंड रूट। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इन दिस मेथड अ रिंग ऑफ बार्क मेजरिंग 2 to 3 centimeter is removed from a selected pencil size stem। ओके, पेंसिल का जो भी साइज होता है वैसा स्टेम लेना है और फिर यू कैन सी इन दिस पिक्चर जो स्टेम का अपर वाला जो बार्क का पार्ट होता है हार्ड, उसको सिर्फ हमको क्या कर देना है 2 to 3 सेंटीमीटर तक, मींस हार्डली जस्ट टू और 2 फिंगर्स इतना प्लेस हमको लेना है और उतना ही पूरा सर्कुलर फॉर्म में रिंग के फॉर्म में हमको क्या करना है, उसको कट करके जो भी है रिमूव करना। Then after that what we have to do, then it is covered with a moist sphagnum moss and enclosed with a polythene sheet tightly tied with a jute string। okay, jute का जो भी string आता है उससे हमको उसको मीन्स इसके अंदर हमको क्या डालना है, तो वी हैव टू यूजिंग अ स्मैग्मम मॉस वगैरह जो वैरायटी होता है, तो इसको हमको पॉलीथीन में डालना और वो पॉलीथीन को दोनों साइड हमको टाइटली क्या करना है, वहां पर टाई कर देना। Now, after that, when a root appears, the stem is cut below the roots and planted to form a new plant. The example is pomegranate, jasmine, and fuchsia plant. You can see that हमने एक बार इसको टाइटली पैक कर दिया, फिर इसके बाद हमको रेगुलरली उसको चेक करना है। Then 10 to 15 days we get a root formation, वहां पर हमको रूट का फॉर्मेशन मिल जाए। वंस द रूट फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड, फिर हमको क्या करना, अगर ये अपर वाला पार्ट है ये साइड का, तो ये रूट का फॉर्मेशन हुआ है उसके नीचे से हम लोग यहाँ से इस प्लांट को स्टेम को कट कर देंगे और फिर नए प्लेस लोग लगा देंगे और इससे नया प्लांट का फॉर्मेशन। सो नॉर्मली दिस टेक्निक बूटी इट विल बी suitable for a plant like a pomegranate, jasmine and fuchsia because इनके स्टेम जो भी ज्यादा ये नहीं हो पाते बेंड। Now the fourth type of artificial vegetative commercial reproduction is a grafting। ग्राफ्टिंग में अलग अलग टाइप है, यहाँ पर एक टाइप यहाँ पे दिया ही उन्होंने। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये वाला पार्ट आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट बायोलॉजी के अंदर फर्स्ट चैप्टर, वहां पर भी आपने देखा। नाउ व्हाट हैपन, ग्राफ्टिंग में हमको करना क्या है, इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर प्रोपैगेशन ऑफ अ सीडलेस वैरायटी ऑफ प्लांट, यानी कि जिस प्लांट को सीड नहीं आता है ऐसे प्लांट वैरायटी के लिए ये वाला जो टेक्निक है ज्यादा। Now it consists of inserting a small branch into a rooted plant, यानी कि हमको एक प्लांट जो अच्छा वैरायटी दे रहा है उसको वहां का बर्ड वाला पार्ट लेना है, दैट इज कॉल्ड इट एज अ स्टियर, और उसको दूसरे प्लांट के ऊपर, दिस इज कॉल्ड इट एज अ स्टॉक, जिसको रूट होता है उसके ऊपर हमको रखना है और उससे उसको क्या करना है, हमको टाई करना है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इट एज, हम लोग एक प्लांट का अपर वाला पार्ट दैट इज स्टियर और दूसरे प्लांट का रूट वाला पार्ट स्टेम के साथ उसको दोनों को देना है, दिस इज कॉल्ड एज ग्राफ्ट। सो द रूटेड प्लांट टेकन एज अ स्टॉक is a resistance to disease and it is physical study। okay, rooted plant जो है जिसका रूट होता है, तो ये प्लांट हमको ऐसे सिलेक्ट करना है कि जो रेजिस्टेंस है डिसीज से, यानी कि उसको कोई भी टाइप का डिसीज नहीं लग सकता है, ऐसे प्लांट हम लोग, यानी कि ये जो स्टॉक वाला प्लांट है ना जिसका रूट होता है वो
ऐसा सिलेक्ट करना है जिसको डिसीज नहीं लगे, ऐसे प्लांट लेना है, और फिजिकली वो स्टर्डी है, फिजिकली वो अच्छा वैरायटी है, ऐसा लेना। एंड सेकेंड हमको क्या लेना है, सीएन। इन दिस स्टॉक अ ब्रांच इज इंसर्टेड विच इज कॉल्ड इट एज अ सीएन। तो दूसरे प्लांट जिसका अपर वाला पार्ट जिसको बर्ड्स वगैरह होते हैं, ऐसे ब्रांच को हमको यहाँ पे आके स्टिक करना है, और ये जो प्लांट है अपर वाला पार्ट हम लोग इसको स्टिक करेंगे, दिस इज कॉल्ड इट एज अ सीएन। दिस सीएन इज अ स्टेम कटिंग फ्रॉम डिजायरेबल प्लांट, यानी कि जो वैरायटी हमको अच्छा दे रहा है ऐसे प्लांट का स्टेम को कट करके यहाँ पे लगा। यूजुअली द ग्राफ्टेड एंड ऑफ स्टॉक एंड सीएन fit well with each other and are bound firmly with a tape or rubber। या तो उसको टेप लगा दो, या तो रबर का बैंड लगा दो, या तो पॉलीथीन वगैरह जो भी है उससे अच्छे से, अगर वो पतला है तो पॉलीथीन से अच्छे से। नाउ एंड वस्कुलर कंटिन्यूटी इज एस्टैब्लिश्ड। वस्कुलर मतलब ये जो रूटेड प्लांट है यहाँ से वाटर और ये सब का कंडक्शन होना चाहिए। सो वैसा हमको ध्यान देना है कि इसका वस्कुलरिटी है वो चालू ही रहना चाहिए अल्टीमेट, या तो फिर वो अपर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, डिमिनिशाइड हो जाएगा, वो डेथ हो जाएगा। सो वस्कुलरिटी कंटिन्यू। ग्राफ्टिंग इज अ मोस्टली प्रैक्टिस इन अ डाइकॉट, बिकॉज वी नो दैट मोनोकॉट प्लांट के अंदर जो टिश्यू होते हैं, ओके, जो कैम्बियम वाला रीजन होता है वो एब्सेंट होता है। तो मोनोकॉट प्लांट को अगर हमने ब्रांच कट कर दिया तो वो तो फॉर्म होगा ही नहीं। तो ये जो टेक्निक है, दैट टेक्निक इज ओनली यूज फॉर अ डाइकॉट प्लांट, बिकॉज डाइकॉट प्लांट का अगर ब्रांच कट कर दिया तो फिर से फॉर्म होते हैं। Grafting has been found extremely useful in propagation, improve variety and various flowers and fruits। तो जो ज्यादा अच्छे वैरायटी के फ्लावर्स है और फ्रूट्स है, ऐसे वैरायटी के लिए ये यूज होते हैं। लाइक एग्जांपल आर रोज, बुगेनविलिया, सिट्रस, मैंगो, चीकू एक्सेट्रा। द रिजल्टेंट ग्राफ्टेड प्लांट आर ड्राफ्ट इन नेचर। जो ड्राफ्टेड प्लांट होता है ना, मीन्स नॉर्मली देखो ऐसे आपको कुछ प्लांट मार्केट में मिल जाएंगे, या तो आपको गार्डन में कहीं देखने मिल जाएंगे, जो देखने में एकदम स्मॉल होते हैं बट उसके ऊपर फ्रूट्स वगैरह लगे होते हैं। सो ये उनके अंदर कौन से टेक्निक यूज होते हैं, सो दैट इज ग्राफ्ट। और प्लस आपको ऐसा भी दिख जाएगा, कुछ प्लांट के अंदर आपको ऐसा भी देखने मिल जाएगा कि एक ही वो वैरायटी है, लेकिन वो एक प्लांट के अंदर आपको अलग अलग टाइप के वैरायटी, यानी कि मैंगो का ट्री है बट उसमें अलग अलग वैरायटी के मैंगो। सो हाउ इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग। अगर मैंने एक ही प्लांट के अलग अलग ब्रांच पे अलग अलग वैरायटी के ब्रांच को ला के अगर स्टिक कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो उसके अंदर ये पॉसिबल। और ये वैरायटी ड्राफ्ट वैरायटी, तो अल्टीमेटली हम लोग वहां पर हार्वेस्टिंग अच्छे से कर। Now the next part of a commercial reproduction is budding. Okay, budding is also similar with the grafting, but यहाँ पर हमको पूरा ब्रांच को कट करके नहीं लगा। इंस्टेड ऑफ फुल ब्रांच हम लोग सिर्फ बड का जो पार्ट होता है प्लांट का उसको ही कट करके लगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ बड, और ये पूरा उससे ही सिमिलर। यहाँ हमने बड लगाया है तो बडिंग, वहां पर हम लोग पूरा का पूरा ब्रांच लगाते हैं तो ग्राफ्टिंग। So, budding often call it as a bud graft. It is an artificial method of asexual or vegetative propagation in a plant. Like a grafting, in this method employed to convert one plant, that is a rootstock, into another plant type with a desirable characteristic. यानी कि एक ही प्लांट पे अलग अलग वैरायटी के या दो प्लांट का कॉम्बिनेशन, वैरायटी का कॉम्बिनेशन हो सकता है बट एक ही स्पीसीज के। द बर्ड स्पीसीज ऑफ डिजायरेबल प्लांट इज रिमूव, यानी कि जो बर्ड्स को मुझे यहाँ पे अटैच करना है, सो वो जो प्लांट है जिसका मैं सीएन लूंगा, तो वहां से मुझे बर्ड का जो पार्ट है वो मुझे वहां से कट करना है। ओके, इसको मैंने रिमूव किया एंड इंसर्टेड इनटू अ वर्टिकल स्लिट ओपन ऑन अ स्टेम ऑफ रूट स्टॉक। देखो इसको अलग अलग मेथड है, जैसे यहाँ पर टी टाइप का कट किया, क्या किया मैंने, ये जो रूटेड प्लांट है इसके अंदर एक टी टाइप का कट किया, और ये टी टाइप के कट के अंदर जो हमने बर्ड निकाला था उसको यहाँ पे लाके अटैच करके उसको मैंने क्या कर दिया, टाई कर दिया, और ये बर्ड का फिर क्या हो जाएगा, ग्रोथ होकर फिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा सेम। So this is called it as a bud. The bud of desirable plant is removed and inserted into a vertical slit opening of a stem of rootstock. The resulting plant is general have a draft structure. यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, वो प्लांट हमको देखने में ड्राफ्ट वैरायटी मिलेगी बट उस ड्राफ्ट वैरायटी में भी हमको फ्लावर्स या फ्रूट वगैरह नीचे ही मिलते हैं। And early maturity
एज अ कंपेयर टू प्लांट प्रोपैगेटेड फ्रॉम सीड, यानी सीड से लगाया तो उसको हमको बहुत टाइम रुकना पड़ेगा, बट यहाँ पर हमको ज्यादा टाइम रुकने की जरूरत नहीं, इसमें मैच्योरिटी जो है वो अर्ली मिल जाएंगे। एंड द कॉमन एग्जांपल आर रोज एंड बेर वैरायटी के लिए ये ग्राफ्टिंग बडिंग जो भी है ये यूज किया। नाउ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दैट टेक्निक, ये जो टेक्निक हम ये सब देखते हैं, so what are the advantage of the technique and disadvantage, इसका यूज क्या है, why we are using this technique, okay? So the first one advantage of this technique is vegetative reproduction का, और जो भी फर्स्ट एडवांटेज है, it is useful for obtaining a large number of genetically identical individual of a genotype irrespective of a degree of heterozygosity, मीन्स यहाँ पर न्यू वैरायटी का फॉर्मेशन बहुत कम, हेट्रोजाइगोसिटी यानी कि अलग वैरायटी जो भी है वो नहीं आता। यहाँ पर हम लोग जो भी प्लांट फॉर्म करते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होता है, बिकॉज यहाँ रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हुआ तो ही गैमेट के वजह से मियोसिस होने से कुछ नया फॉर्मेशन हो सकता है, बट यहाँ पर वट एवर प्लांट इज फॉर्म इट इज 100% जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी उसमें जीन का कॉम्बिनेशन सेम ही रहेगा पैरेंट प्लांट। Now the second one part, promising individual occurring at any stage in a breeding program can be easily picked up and maintained by asexual people. Means जो भी प्लांट है इसको कोई भी स्टेज में रहो, वो फ्लावरिंग स्टेज में रहे या अगर उसको फ्लावर नहीं आया है, वो मैचुरेशन में नहीं गया है, ऐसे प्लांट के लिए मीन्स ये कोई भी स्टेज में हो, दोनों भी प्लांट वट एवर प्लांट वी आर सिलेक्टिंग ये कौन से भी स्टेज में रहे तो उस प्लांट के लिए ये वाला मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज वन टाइप ऑफ asexual reproduction. Now third one, it makes a use of desirable word mutation. ओके अगर हमको कुछ नया वैरायटी फॉर्म करना तो हम लोग म्यूटेशन से फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर, तो उसके अंदर जो भी है न्यू वैरायटी आने के फॉर्म होते हैं। ओके सो इट मेक्स द यूज ऑफ डिजायरेबल word mutation. All of you know the mutation, there is a sudden change in the nucleotide. Now mutant can directly release as a variety, जो mutant फॉर्म हुआ है उसको हम लोग डायरेक्टली न्यू वैरायटी के फॉर्म में वहां पर फिर यूज करते हैं। Now the fourth one, rapid reproduction and spread. Okay, यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो भी है, रिप्रोडक्शन मीन्स यहाँ पर हमने एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट का फटाफट फॉर्मेशन कर सकते हैं कम से कम टाइम। The desired variety can thus be preserved generally genetically for further use. मीन्स whatever प्लांट हमने सिलेक्ट किया उसको हम लोग नंबर्स भी बढ़ा सकते हैं, रैपिड रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, प्लस उसको प्रिजर्व करके भी हम लोग रख सकते हैं नंबर बढ़ा। The second one, improve variety of ornamental plant and fruit tree can be multiplied easily. ये टेक्निक से हम लोग जो इम्प्रूव वैरायटी है, कौन से वैरायटी ज्यादातर, सो रोज है ऑर्नामेंटल प्लांट जो दैट इज मनी प्लांट है, रोज का प्लांट, तो जो हमको ज्यादातर मनी प्रोवाइड करते हैं कमर्शियल जो भी है, सो ऐसे प्लांट के अंदर ज्यादातर ये टेक्निक यूज होता है दैट इज फ्लावर और फ्रूट के वैरायटी में, जिसमें मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी हो गया। अदरवाइज अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो सीड आएगा, सीड से फिर वो छोटा प्लांट प्लेट फॉर्म होगा, फिर उससे बड़ा प्लांट फॉर्म होगा, बहुत टाइम। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन इज क्विकर, जल्दी हो जाएगा, इजियर है थोड़ा सा, एंड लेस एक्सपेंसिव मेथड फॉर मल्टीप्लाइंग द, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर टिश्यू कल्चरिंग वगैरह यूज नहीं कर रहे, सो अल्टीमेटली ये थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है, थोड़ा मनी तो लगेगा बट एज अ कंपेयरिंग विद अदर टेक्निक ये थोड़ा लेस है। Then the sixth one advantage is plant developed by this method are smaller in stature, hence harvesting become easy. हमने क्या किया, एक प्लांट का स्टेम को कट किया, दूसरे प्लांट के रूट वाले स्टेम पे अटैच, इससे क्या होगा अगर हमने नीचे से कट किया तो जब जो न्यू प्लांट होगा उसमें स्टेम जो आएंगे, ब्रांच आएंगे, वो नीचे ही रहेंगे, तो उसमें फ्रूट भी नीचे ही रहेगा, सो अल्टीमेटली उसका स्टेचर जो हाइट है वो कम रहेगा, और फिर इसके वजह से हार्वेस्टिंग जो भी फ्रूट आ रहा है, फ्लावर आ रहा है, इनका हार्वेस्टिंग करना बहुत इजी हो जाए। यूजिंग दिस मेथड नोबल प्लांट कैन बी क्रिएट। नाउ these are the advantage of that technique. Now the second one part is the disadvantage of a vegetative reproduction. What is the disadvantage? So for this technique we require a skilled man. जितना हमको देखने में इजी लग रहा है उतना इजी नहीं, सो अल्टीमेटली वहां पर अगर हमको कुछ कट करना है तो वो कट के लिए भी स्किलफुल, यानी कि जिस पर्सन को स्किल है उसका वही लगे, कोई भी पर्सन नहीं चले, उसको स्किल
मैन पावर जो भी है यहाँ पे यूज होगा. समटाइम दिस टेक्निक इज एक्सपेंसिव, नॉट ऑल टाइम, बट समटाइम ये टेक्निक एक्सपेंसिव भी है. एंड प्लांट हैव अ शॉर्ट लाइफ, जो लाइफ होता है वो जो भी है ये शॉर्ट हो जाता है. न्यू वैरायटी कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय दिस मेथड एक्सेप्ट म्यूटेशन. म्यूटेशन का एक स्टेज छोड़ दिया बर्ड वाला, सो इसके अंदर न्यू वैरायटी का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, बिकॉज रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो फिर गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा. गैमेटोजेनेसिस नहीं हुआ तो दो अलग वैरायटी की कॉम्बिनेशन नहीं होगा. सो अल्टीमेटली यहाँ पर न्यू वैरायटी का फॉर्मेशन बहुत कम होगा. डिसीज ऑफ अ टिपिकल स्पीसीज आर रैपिडली ट्रांसमिटेड एंड कैन डिस्ट्रॉय द क्रॉप. अगर किसी प्लांट को डिसीज लगा है तो ये हम लोग कट करके दूसरे को लगा रहे हैं तो उस प्लांट को भी डिसीज हो जाएगा. सो अल्टीमेटली जो डिसीज वाला पार्ट है प्लांट का वो रैपिडली एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट होगा और ये फिर क्रॉप को नुकसान कर सकता है, प्रॉब्लम. There is a no genetic variation, so plants are less adapted to environment. Genetic variation जो है इस प्लांट में फॉर्म होता ही नहीं है, नया कुछ फॉर्मेशन होता ही नहीं है. सो अल्टीमेटली इन्वायरमेंट के लिए ये कम से कम अडेप्टेबल मीन्स इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होता है, वेदर का चेंज है, हाई रेन है, क्लाइमेट चेंज है, सो इसके अंदर ये प्लांट कम से कम टिकते रहेंगे. सो अल्टीमेटली ये खराब हो. So this is all about that 3.2.1 and 3.2.2, that is asexual reproduction के अंदर हमने देखा that is natural vegetative reproduction and artificial vegetative reproduction. Now if we have any question, so this is video, so if you have any question so आप लोग यूट्यूब पे मैं जब भी अपलोड किया हूँ तो वहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो. आइदर मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है दैट इज 9273887800, दैट इज ऑफिस रविंद्र गुप्ता. ओके, सो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप लोग पर्सनली मुझे मैसेज कर दो. तो मुझे जब भी टाइम रहेगा तो मैं आपको वहाँ पे उसका आंसर वगैरह जो भी रहेगा डाउट्स वगैरह वो आपको सॉल्व. थैंक्स ऑल ऑफ